your 7th standard? How are you? Okay. I hope you people are working on your videos and giving tests regularly, right? चलिए, let us start with social studies today. Okay, in our social studies, for our geography, we already finished with first lesson and question answers PDF also I had uploaded in our AD School app along with video. So I hope you people have finished writing that in your SS notebook. If not, then please you can visit those videos still, it is already there, and just see that you finish with your first lesson along with explanation also. Okay. So today in geography we will start with second lesson. I hope you people are having books with you. If you have your books, you can take out second lesson from your book. If you don't have book with you, then also no issues because I will upload pages whichever I will explain. Okay, so that you can hear explanation and you can do even reading by opening PDF file of these pages. Understood? So वो भी हम करेंगे. Okay. Now, if I talk about inside our earth, okay, lesson number 2, inside our earth. Okay. Just 1 minute. Okay, sorry for just disturbance. Okay, inside our earth की बात करें, लेसन नंबर 2, inside our earth. हमारी धरती में क्या है? What is there in our earth? Okay, we are going to study that. See, we know कि धरती जो है, it is round in shape. वो तो हमें पता है. Yes or no? And where we are living? We are living on top place. You know, हम ऊपर रह रहे हैं. Understood? What is this? This is completely rocky area. Understood? यहाँ पर धरती के अंदर जो है, like बोरवेल्स वगैरह करते हुए आपने देखा ही होगा. अगर हम बोरवेल करेंगे तो उसमें से मिट्टी भी निकलते रहते हैं, पत्थर निकलते रहते हैं. Understood? So this is rocky area. लेकिन ये जो रॉकी एरिया है उसको भी डिवाइड किया गया है. अंडरस्टूड? दिस रॉकी एरिया को भी डिवाइड किया गया है. किसमें डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में. दिस रॉकी एरिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, विच 3 पार्ट्स? सी, धरती के अंदर, कंप्लीटली धरती के अंदर जहाँ पर सेंटर है वहाँ से लेकर इतना जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कोर. CORE, कोर. CORE, कोर. अंडरस्टूड? और धरती के ऊपर का जो हिस्सा है दैट इज, सॉरी, ये कोर से ऊपर का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड मैंटल. MANTLE, मैंटल. अंडरस्टूड? एंड जहाँ पर हम रह रहे हैं दैट इज धरती के ऊपर का जो हिस्सा है दैट इज CRUST, क्रस्ट. अंडरस्टूड? CRUST, क्रस्ट. So we are going to study something about this only. It's very interesting. If you have your book, you have this diagram also. Okay, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी लेयर कितने किलोमीटर्स अंदर है. So like suppose, can you see difference between this crust and mantle का difference? Okay, ये कितने किलोमीटर्स है? Then mantle और कोर का difference कितने किलोमीटर है? Understood? पूरा diameter कितना है इसका? All we are going to read in this. Let us start with the Earth. Our homeland is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? क्या कभी सोचा है धरती के अंदर क्या है? क्योंकि हम तो धरती के ऊपर रहते हैं. We are living up. We are living on the earth. We are not living in the earth. Understood? यहाँ पर आर्टिकल, सॉरी, यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज हो रहे हैं on and in.
सो व्हाट वी हैव टू रीड हियर कि धरती के अंदर क्या है. अंडरस्टूड. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एन ऑनियन, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer of the earth is called crust. That is what I said. Uppermost layer of the earth is called crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometers. That is, ये जो crust है वो मेटल और क्रस्ट का जो डिफरेंस है 35 किलोमीटर्स है. अंडरस्टूड. इट इज 35 किलोमीटर्स. ओके. सी, अगर आप धरती के अंदर 35 किलोमीटर्स तक जाओगे, 35 किलोमीटर्स तक क्रस्ट ही है. 35 किलोमीटर्स के बाद मेटल शुरू होगा. अंडरस्टूड. 35 किलोमीटर्स के बाद मेटल शुरू होगा. अब मेटल्स कितने किलोमीटर्स का है वो देखते हैं. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर्स ऑफ द ओशन फ्लोर. सी, आप समुद्र को देखा होगा. हमें ये पता है कि समुद्र जो है वो बहुत गहरा है, राइट. तो समुद्र सिलेक्ट सपोज दिस इज ओशन, राइट. ये जो ओशन है तो वो यहाँ से लेकर, अगर यहाँ पर बोट है, यहाँ से लेकर समुद्र जो है काफ़ी गहरा है. अंडरस्टूड. आइडल से नीचे उसका जो क्रस्ट है, समुद्र के नीचे जो धरती है वो जो है वो और मेटल का बॉर्डर, इट इज़ हैविंग डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ओनली. मतलब 30 किलोमीटर्स तक भी समुद्र गहरा है. अंडरस्टूड. समुद्र जो है, जो ओशन है, इट इज़ सो डीप अप टिल 30 किलोमीटर्स तक भी कई जगह पर वो नीचे तक है. एंड मेटल तक ओनली 5 किलोमीटर्स का स्पेस रह जाता है. अंडरस्टूड. देन द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना. इट इज thus called SALE, silica and alumina. The oceanic crust mainly consists of silica manganese, therefore it is called SIMA. Okay, so that is what silica and alumina. दो चीज़ों से ये जो मास कॉन्टिनेंट है वो बना हुआ है. धरती के, that is समुद्र के नीचे जो धरती है वहाँ पर सिलिका ज़्यादा है एंड धरती का जो लैंड एरिया है वहाँ पर एल्यूमिना ज़्यादा अवेलेबल है. Understood. Just beneath the crust is the mantle which extend up to 2900 kilometers below the crust. See, crust और mantle के बीच 35 किलोमीटर्स का डिफरेंस है. ये सबसे कम डिफरेंस है क्योंकि फिर मेटल शुरू होता है. मेटल कोर तक पहुँचते पहुँचते उसका डिस्टेंस 2900 किलोमीटर्स है. Understood. That is 35 डिग्री किलोमीटर्स एंड 2900 किलोमीटर्स का डिफरेंस है मेटल और कोर का. ओके. देन बिलो द क्रस्ट ऑन नेक्स्ट पेज, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ इज द कोर. अंदर जो लेयर है दिस इज कोर. ओके. दिस लेयर जो ये सर्कल है ये कोर है. ओके. दैट इज मेटल से, मेटल जहाँ पर फिनिश होता है उससे सेंटर तक का एरिया ये कोर है. ओके. सो कोर इज अबाउट 35 किलोमीटर्स. सो कोर का डिस्टेंस कितना है? 35 किलोमीटर्स. अंडरस्टूड. 35 kilometers, 2900 kilometers and 3500 kilometers. It is mainly made up of nickel and iron and it is called NIF. So nickel and iron ज़्यादातर यहाँ पर अवेलेबल है. बहुत गर्म एरिया होता है ये. ओके. यहाँ पर निकल एंड आयरन अवेलेबल है. सो जस्ट इमेजिन कितना डीप हमारी धरती है. The central core has very high temperature and pressure. वो हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. कोर का जो अंदर का एरिया है उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है. जितना टेम्परेचर हाई हो
उतनी गर्मी ज़्यादा होती है, जितना टेम्परेचर लो हो उतना कूलनेस ज़्यादा होता है, दैट वी नो। यस और नो? ओके, नाउ rocks and minerals. Our next topic will be rocks and minerals. See, the earth crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matters that makes up the earth crust is called rock. Rocks can be different color, size and texture. जो पत्थर निकलते हैं, that is when we do borewell, बोरिंग वगैरह करते हैं पानी के लिए, और उस वक्त फिर कई जगहों पर बहुत पत्थर होता है जिसकी वजह से बोरिंग करते हुए बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं। ओके, सो वो जो पत्थर वगैरह है वो क्रस्ट में है, इतने एरिया में पत्थर हैं, अंडरस्टूड। और आप यू कैन आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो, अभी तक आई डोंट थिंक किसी ने 35 किलोमीटर्स तक अंदर बोरिंग किया होगा, अंडरस्टूड, नो वन। ओके, देन सो रॉक्स जो है वो डिफरेंट साइज के, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट टेक्सचर के, टेक्सचर मतलब उनको टच करने का जो फील आता है, कई रॉक्स स्मूथ होते हैं, कई रॉक्स रफ होते हैं, दैट थिंग। ओके, there are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So there are three types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are two types of igneous rocks: intrusive rock and extrusive rocks. Let us see still more clearly about it. और clearly देखते हैं इसके बारे में। Now in this we are talking about rocks, right? In this we are talking about rocks. Rocks की बात करें तो first we talk about igneous rocks. Igneous rocks further two parts में divide हो रहे हैं, that is intrusive rocks and extrusive rocks, understood? Okay, now अगर igneous rocks की बात करें तो igneous rocks मतलब क्या? You know molten magma, that is जब volcano वगैरह होता है तो धरती में से एक लिक्विड लावा निकलता है, ओके, और वो जब ड्राई अप हो जाता है, जब वो लावा से इंटीरियर एरिया में जो मतलब इफ दिस इज माउंटेन और यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो यहाँ से लावा निकलेगा, वो लिक्विड एरिया माउंटेन से ऐसे नीचे जाएगा, यस और नो? ओके, सो हियर इट कम्स विद माग्मा। जब ये माग्मा ड्राई अप हो जाता है, इट गिव्स अस igneous rocks, understood? So igneous rocks two types के होते हैं, intrusive and extrusive. Intrusive जो अंदर होते हैं, extrusive जो बाहर निकल आते हैं, okay, that is, see in here this one explanation is also given here. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? That is what I said you. जब वॉल्केनो होती है, आग लगती है, तब दैट इज माउंटेनियस एरिया में से या जहाँ पर भी वॉल्केनो इरप्ट होता है वहाँ से जस्ट एक लिक्विड टाइप निकलता है, दिस लिक्विड टाइप इज कॉल्ड लावा, अंडरस्टूड? दिस लिक्विड टाइप इज कॉल्ड लावा. Lava is actually very red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. That is, अंदर जब बहुत ज़्यादा गैस भर जाती है तो वो गैस, धरती के अंदर जब बहुत गैस होती है तो वो गैस निकलता है, तब वॉल्केनो इरप्ट होता है, ओके? तो जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो कुछ रॉक्स हैं जो अंदर ही रह जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लावा के फेस में लिक्विड टाइप में वो बाहर निकल आते हैं, ओके? व्हेन द मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज जब लावा धरती के ऊपर आ जाता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड. वो पूरा जब कूल हो जाता है, ड्राई होकर
ड्राई होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टूड। एंड जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब रॉक्स फॉर्म होते हैं, और वो रॉक्स एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाते हैं। और जो लावा का पोर्शन अंदर ही रह गया दैट इज कॉल्ड एज इंट्रूसिव रॉक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। रॉक्स आर फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। बाहर है तो एक्सट्रूसिव। ओके। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth. कई बार molten magma धरती के अंदर ही कूल हो जाता है, तो वहाँ पर जो रॉक्स फॉर्म होते हैं those rocks are called as intrusive rocks, intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such rocks. Grinding stones used to prepare paste, powder and spaces and grains are made up of granite. Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. पत्थर जो है वो रोल डाउन होते हैं, हवा के साथ जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो मूव होते हैं, और मूव होते होते वो अपने पीछे छोटे छोटे पार्टिकल्स छोड़ते जाते हैं। ओके। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये जो छोटे छोटे दैट इज बड़े पत्थर जब मूव होते हैं तो उनमें से छोटे छोटे पत्थर ग्राइंड होते रहते हैं, और वो जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. हवा और पानी की वजह से वो छोटे छोटे जो पत्थर हैं सेडिमेंट्स हैं वो मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। These two sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made up of grains of sand. These rocks may also contains fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. See, rocks हैं, rocks पे कई animals, कई plants के leaves वगैरह वो stuck हो जाते हैं, right? अब वो rocks अगर move होंगे उनके साथ तो उनका जो dead bodies में जो डेड बॉडीज में से जो लिक्विड पोर्शन निकलेगा वो उन रॉक्स के साथ मिक्सअप होता जाएगा। अंडरस्टूड? एंड वो जब रॉक्स के साथ मिक्सअप होता जाएगा इट बिकम सेडिमेंटरी रॉक्स। इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। वो रॉक्स थे इग्नियस रॉक्स, जो लावा ड्राई अप होता है और रॉक्स फॉर्म होते हैं, दैट इज इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स जब मूव होते हैं और उन रॉक्स में से जो छोटे छोटे रॉक्स फॉर्म होते हैं दैट इज सेडिमेंटरी रॉक्स। अब सेडिमेंटरी रॉक से एक रॉक के ऊपर दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो जो लेयर्स बन जाती है तब नीचे जो ऊपर लेयर से नीचे वाले रॉक्स होंगे उनको क्या बोलते हैं? दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अंडरस्टूड? जो बहुत ही मतलब ज़्यादा टेम्परेचर के प्रेशर में होते हैं। ओके। देन रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, फॉर एग्जाम्पल 7 stones और hopscotch or 5 stones. Find out some another such games by asking your grandparents and parents, neighbors, etc. So पत्थर हम कई चीज़ों में यूज़ करते हैं, नॉट इवन गेम्स, पत्थर हम कंस्ट्रक्शन वर्क्स में भी यूज़ करते हैं, राइट? ओके, आई विल स्टॉप हियर ओनली. Just go through this much, okay? Very little portion of our lesson is left out, but that we will go on with our next video, because as I will give you question answers also in my next video. Okay, whatever I explained in this video I will just upload these pages also so that you all can do reading of this. Thank you.